What if tomorrow I decide to become an interior designer from a completely different background with zero experience and zero connections? No knowledge, no understanding about the field. What do you think will be my first move? Let me tell you what most people do, especially freshers. You just open YouTube and search how to become an interior designer. Interior Design Roadmap 2026. Then you will spend hours exploring different roadmaps and courses. कभी किसी वेस्टर्न क्रिएटर का रोड मैप देख लिया, कभी किसी इंडियन क्रिएटर का, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड आप ऐसे ही मल्टीपल क्रिएटर्स का कंटेंट एक्सप्लोर करते हो। फिर जिस भी क्रिएटर का कंटेंट आपको सही लगता है उसी का रोड मैप आप फॉलो करने लग जाते हो। बट ये ज्यादा दिन तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। 1 मंथ मे बी 2 मंथ्स आप फॉलो करते हो एंड देन बीच में कहीं छोड़ देते हो एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिएटर एंड दैट्स हाउ यू जस्ट वेस्ट योर मंथ्स ऑफ टाइम। बट लेट्स से अगर मुझे आज 2026 में इंटीरियर डिजाइनर बनना है फ्रॉम स्क्रैच, देन आई विल फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड अ सिस्टम। ऐसे 5 स्टेप्स में फॉलो करूंगी जो मुझे गारंटीड बहुत जल्दी एक इंटीरियर डिजाइनर बना देगी, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर विद 11+ years of professional experience, and I have been working in Dubai for almost 3 years now. I have had a chance to mentor almost 1600+ professionals who are either planning to move to Dubai or have already moved here and are building their career from scratch. I'm here to help fresher students and experienced professionals who wants to enter the field of interior design, and also people who wants to build their career and move to Dubai for better life. So अगर आपको भी इंटीरियर डिजाइनर बनना है, make sure you subscribe to my channel and let's quickly begin with the video. Step number 1 that I will take as a fresher is taking a structured course. Mostly majority लोग ये गलती जरूर करते हैं, they don't do a proper market research. डिग्री डिप्लोमा करने से पहले you should always explore the online courses to even decide whether you want this career for lifelong. Because interior design or any other creative profession is not that easy. Usually आप क्या गलती करते हो, especially if you want to become self-taught interior designer. YouTube पे randomly कोई सीरीज उठा लिया, आधी कंप्लीट कर ली, फिर दूसरी उठा ली और कभी पूरी एक चीज कंप्लीट की ही नहीं। Trust me, I have also been there. मुझे भी अगर कुछ न्यू स्किल सीखना है तो मेरा भी यही पैटर्न है, and I'm sure you can relate to this. But after 11 years of deep understanding of the market, I have a credibility to say this कि अगर मैं कुछ सीखना शुरू करूंगी तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर ही करूंगी। फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी न्यू स्किल एक्वायर करनी है तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू लर्न इट थ्रू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स. I would never start random YouTube series, and believe me, don't get me wrong, YouTube is a great source of learning things, but when it comes to your career, you should not keep jumping from one roadmap series to another, because आप कभी कोई सीरीज कंप्लीट नहीं कर पाते हो. If you are someone who start these series of courses on YouTube, make notes, learn things start to end, then well and good for you. But 99% of us, we don't finish what we start, and that's human nature. मैं खुद accept कर रही हूँ that I also do the same. This is the pattern, and I'm sure you can relate to this. So please make sure you take a structured certification. Yes, I do have some recommendations for interior design courses. मैं अपनी mentorship sessions में भी mostly यही courses recommend करती हूँ हर उस fresher को जो interior design field में आना चाहता है. Let me give you 2 options. Coursera पे interior design के structured courses available हैं. कुछ international universities के हैं like California Institute of Arts, RMIT University, जो genuinely resume worthy हैं. But please be mindful before you opt for any of the courses. ऐसा कोई भी कोर्स मत ले लेना just because नाम अच्छा लग रहा है. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स शेयर किए हैं, वहां से आप देख सकते हो, कंपेयर करो एंड फिर डिसाइड करो whichever one you want to take. जो भी कोर्स लो, मेक श्योर इट गिव्स यू अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्ट्रक्चर. थ्योरी पढ़ना अलग चीज है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना अलग चीज है. इंटीरियर डिजाइन एक विजुअल फील्ड है. जो लोग प्रोजेक्ट एंड टू एंड करते हैं डेफिनेटली आगे जाते हैं. जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं. थ्योरी अंडरस्टैंडिंग होना इज फाइन, फंडामेंटल्स पता होना इज गुड, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 2 दैट आई विल टेक इज फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर स्किल्स फ्रॉम डे 1. ये स्टेप आपको थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, बट बिलीव मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ. बहुत सारे फ्रेशर्स ये गलती करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं, पहले डिजाइन प्रिंसिपल सीखते हैं और सॉफ्टवेयर बाद में सीख लेंगे, ये प्लान बनाते हैं. दिस इज रॉन्ग. आज के टाइम में इंटीरियर डिजाइन फील्ड में अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर. एज सिंपल एज दैट. 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको मैंडेटरी आने चाहिए. ऑटोकैड 2D ड्रॉइंग्स के लिए ये फाउंडेशन है. स्केचअप 3D मॉडलिंग के लिए ये सबसे बिगनर फ्रेंडली टूल है. एंड फोटोशॉप या कैनवा प्रेजेंटेशन या मूड बोर्ड्स के लिए. और 2026 में एक और सॉफ्टवेयर एड ऑन हो गया है इस लिस्ट में, जो है AI बेस्ड डिजाइन टूल्स जैसे मिड जर्नी या एडोबी फायरफ्लाई, जो कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं. अगर ये आपको आते हैं तो आप इमीडिएटली एक लेवल आगे हो. दोनों चीजों पर साइमल्टेनियसली काम करो, थ्योरी
एंड सॉफ्टवेयर। एक के बिना दूसरा डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। स्टेप नंबर 3 दैट आई विल टेक एज अ फ्रेशर इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। हाँ, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं वैशाली क्या मुझे एक स्पेशल वेबसाइट बनाना जरूरी है पोर्टफोलियो के लिए? नो, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग Behance प्रोफाइल बनाओ या एक क्लीन PDF पोर्टफोलियो बनाओ। जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे वैसे ही उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाओ और वही होगा आपका पोर्टफोलियो। अब मैं आपको क्विकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड टेक नोट्स एज वेल। मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्लियरली समझानी है आपको। पहली, कौन से प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। दूसरी, कौन से प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं ऐड करना चाहिए। तो लेट मी क्विकली ब्रेक इट डाउन। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखते हो। ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल करनी है, ये आपकी स्किल्स बिल्ड करेंगी, बट इन्हें पोर्टफोलियो में ऐड मत करो। अगर आप इन्हें पोर्टफोलियो में ऐड कर दोगे इट विल नॉट बी दैट हेल्पफुल, इट्स फॉर योर ओन लर्निंग। देन पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाते हो। खुद एक स्पेस चूज करो, अपना रूम, अपने घर का कोई भी कॉर्नर, कोई भी इमेजिनरी स्पेस, उस स्पेस का कंप्लीट डिजाइन बनाओ। फ्लोर प्लान, 3D, मूड बोर्ड, मटेरियल सिलेक्शन, ये सब बनाओ। ये सब आपका खुद का ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। हमेशा याद रखना, इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से यू विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। जितना ज्यादा आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स बनाते हो उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स स्ट्रांग होते हैं और उतना ही ज्यादा आप इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाते हो कि आपने क्या बनाया है। डिजाइन कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, ड्रॉइंग्स, मटेरियल्स, ये सब के बारे में आपने रिसर्च की होती है, आपको पता होता है डिटेल में हर एक प्रोजेक्ट के बारे में। दैट्स व्हाई खुद से प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 4 दैट आई विल टेक एज अ फ्रेशर इज गिविंग माई 100% टू माई CV एंड LinkedIn। बहुत सारे फ्रेशर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने CV पे। मैं इतने लोगों के CVs देख चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग दिस मिस्टेक। सब बस बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपने पोर्टफोलियो बनाने में, स्किल्स सीखने में, सॉफ्टवेयर सीखने में, बट नो वन पुट्स मोर अटेंशन टू CV। आप सोचो, जस्ट 2-page डॉक्यूमेंट इज इनफ टू टॉक अबाउट योर एंटायर एक्सपीरियंस, योर एंटायर प्रोफाइल, एंड इट्स इनफ टू टेल अ रिक्रूटर वेदर यू शुड गेट सिलेक्टेड और नॉट, बिकॉज CV इज द ओनली डॉक्यूमेंट दैट रिक्रूटर्स आर इंटरेस्टेड इन द वेरी बिगनिंग। अगर आपका CV ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन सीइंग योर पोर्टफोलियो, राइट? दुबई में स्पेसिफिकली CV फॉर्मेट इंडिया से अलग होता है, फोटो रिक्वायर्ड होती है, फॉर्मेट और लेआउट डिफरेंट होता है, सिंपल फॉर्मेट चाहिए होता है और प्रेजेंटेशन काफी मैटर कर। तो मेक श्योर आपका CV बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने खुद का दुबई CV टेम्पलेट लिंक ऐड किया है एंड ऑल्सो इंडिया में मुझे जितनी भी कंपनीज में जो CV यूज करके जॉब्स मिली थी वो भी मैंने ऐड किया है। दुबई CV टेम्पलेट और इंडिया CV टेम्पलेट मेरा खुद का, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड LinkedIn, प्लीज अपना LinkedIn प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, ओपन टू वर्क डालो, UAE टाइम जोन मेंशन करो अगर दुबई में जॉब देख रहे हो, स्किल्स प्रॉपर्ली ऐड करो, क्योंकि दुबई में रिक्रूटर्स LinkedIn पे एक्टिवली सर्च करते हैं एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दुबई मार्केट, इट इज वैलिड फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर एनी अदर कंट्री। स्टेप नंबर 5 दैट आई विल टेक एज अ फ्रेशर इज अप्लाइंग स्मार्टली। अभी तक आपने जो भी किया है, बट अगर ये स्टेप आपने मिस कर दिया तो जॉब लगना कई बार इम्पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको पूरा अपना डिटेल स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ, कॉपी करो उसे ChatGPT या क्लॉड में, वहां पे आपको प्रॉम्प्ट देनी है, प्लीज पिक 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, देन यू विल गेट दोस कीवर्ड्स। फिर अपना CV कस्टमाइज करो उन कीवर्ड्स के साथ। ये लिटरली बेस्ट चीज है, बेस्ट हैक है। ATS सिस्टम्स आजकल कीवर्ड्स पे ही CV शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन सेकेंडली, बिना रेफरल के भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आई हैव मेंशन दिस इन माय वीडियोस एज वेल मल्टीपल टाइम्स। अगर आपने 50 जगह अप्लाई किया है और सिर्फ 5 जगह रेफरल लिया है, दैट मीन्स यू हैव जस्ट अप्लाइड टू 5 प्लेसेस। प्लीज बिना रेफरल के अप्लाई मत करो। LinkedIn पे जाओ, उस कंपनी के एम्प्लॉइज को ढूंढो, देन उनसे कनेक्ट करो एंड उन्हें मैसेज करो, एंड ट्रस्ट मी, रेफरल मिल जाता है, बस मांगना पड़ता है। ट्रैकर भी बनाओ खुद के लिए, किस कंपनी में अप्लाई किया, कब किया, रेफरल लिया या नहीं, फॉलोअप किया या नहीं, सब कुछ ट्रैक करते रहो। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ सिस्टम, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, इट बिकम्स योर हैबिट एंड इट रियली हेल्प्स यू मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर। बिकॉज इंटीरियर डिजाइन और एनी अदर creative field, you work on 10 different things on daily basis. So project management becomes very chaotic. You work on so many versions of one particular thing. It becomes difficult to remember which is the latest version you were working on. And ये small सा exercise है, but it makes a lot of difference in your day-to-day tasks. So by following these 5 steps, you're not following a proper structure to pursue a career, but this way you will have a proper clarity on how to move forward to become professional in any of the desired field you want to get into. Recently, I connected for a mentorship session with a professional who is a mechanical engineer, and he wants to transition his career from mechanical engineering to interior design because he has a family business related to Vastu consultation and astrology. So he wanted to pursue this career full time, interior designing, and wanted to connect to get clarity, diploma
डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री, एंड दिस इज द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क वी डिस्कस्ड इन द सेशन. First of all, you need to understand whether you really want to get into interior designing or not. So try to figure out with the help of online courses whether you are enjoying the field, then move forward with the diploma or degree course, whichever one you want to opt for. तो सारे steps follow करो और comment section में जरूर से लिख देना I am ready, ताकि मुझे पता लग जाए आप ये जर्नी जरूर फॉलो करने वाले हो. डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना दुबई सीवी टेम्पलेट, कॉर्सेरा कोर्स लिंक्स और रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स शेयर किए हैं. अपना इंडियन सीवी टेम्पलेट भी मैंने ऐड किया है, वो जरूर देख लेना. और अगर आप पर्सनली अपनी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हो देन आप मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन पे कनेक्ट कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा. अगर आपको आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो चाहिए, फ्रेशर्स को कैसे बनाना है वो भी मैंने अपना खुद का लाइव किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना. इस चैनल पे आपको इंटीरियर डिजाइन, दुबई करियर और दुबई लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.